नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पर काफ़ी चर्चा चल रही है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा 10 साल के बाद बैंक पेंशनर्स के लिए स्टे दे दिया गया है और वो स्टे देने के बाद काफ़ी बैंक पेंशनर्स द्वारा रिट पिटीशन फाइल की गई और उनको स्टे मिलता गया, जिसमें कि स्टेट बैंक के भी एक पेंशनर्स का ग्रुप है जिसको लीड कर रहे हैं चमन लाल कपूर जी। उन्होंने भी स्टे लिया था और इन सब की डेट कल 21/8/2024 को लगी हुई थी, जिसमें कि रिस्पोंडेंट की तरफ से रिप्लाई सबमिट होना था। कल की डेट में क्या डेवलपमेंट हुई है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई। इसी दौरान एक डिटेल कैलकुलेशन एफएसबीआई पीए द्वारा की गई है, जिसमें कि स्टेट बैंक के पेंशनर्स का जो कम्यूटेशन फैक्टर है उस पर डिटेल चर्चा की गई है और स्टेट बैंक की मैनेजमेंट को जो स्टेट बैंक का कम्यूटेशन फैक्टर है उसको बढ़ाने के लिए कहा गया है कि उसको इंडस्ट्री लेवल पर कर दिया जाए। इस संबंध में जो एफएसबीआई फेडरेशन का कम्युनिकेशन है उसको मैं आपके सामने रखूंगा और चर्चा करेंगे। और commutation of pension in SBI. Lot of talk has been now began about commutation of pension and excessive recovery in commutation. Gujarat state government has reduced the recovery period to 12 years instead of standard 15 years. The Punjab and Haryana High Court has stayed the recovery of commutation beyond 12 years. The Consultative Committee of the Central Government 7th Pay Commission has also demanded similar relief in Chandigarh Circle. Some SBI pensioners have gone to the court and have obtained stay order on recovery after 10 years. Similar demand is made by some pensioner in our circle. Members advise that the court cannot create new rights. This issue can only be settled through negotiation. In SBI, the situation is different. It was 1805 that Bank of Calcutta who established, out of which the present day SBI was born. Since then, the scheme of pension had come into existence. The Bank of Calcutta was followed by the Presidency Bank and then Imperial Bank of India in 1921. Throughout this period, there was no scheme of commutation of pension. Only in 1995 it was introduced. तो दोस्तों, ये स्टेट बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के लगभग 40 वर्ष तक ये स्कीम लागू नहीं हुई थी। कम्यूटेशन की पेंशन केवल 1995 में ही शुरू की गई। इन ट्रिपार्टाइट मीटिंग बिटवीन बैंक एंड the representatives of both working staff federation and the commutation of pension was introduced in SBI. The factor of commutation of pension in SBI at the next age of 61 years was taken as 6.61, whereas in other banks it is 9.81. Salary scale are same in SBI and other banks, but commutation formula is different. The SBI retirees suffers in commutation as will be clear from the following example. Pension in SBI is rupees 30,000. Pension in other bank is rupees 30,000. 1/3 of the pension is rupees 10,000. 1/3 of pension is rupees 10,000 in other banks. Commutation value 10 multiplied by 6.61 multiplied by 12 equal to rupees 7,93,200.
In case of the PSU bank, it is 10 multiplied by 9.81 multiplied by 12 equal to 11 lakh 77,200. Recovery in SBI and recovery in other banks. Recovery in SBI is rupees 10,000 multiplied by 15 multiplied by 12, that is equal to 18 lakh. In other bank also 10,000 multiplied by 15 by multiplied by 12 is equal to 18 lakh. Against payment of 7 lakh 93,200, the recovery of 18 lakh is there. In case of other bank, against payment of 11 lakh 77,200, recovery of rupees 18 lakh. So this is the disadvantage position. दोस्तों ये क्लियर कट है कि 7,93,200 पर रिकवरी 18 लाख हो रही है, दूसरी तरफ 11,77,200 पे भी 18 लाख ही हो रही है। अब यहाँ पर कई बार बात करते हैं कि स्टेट बैंक के ट्रिपल बेनिफिट हैं, लेकिन ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसका ट्रिपल बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है। यदि कम्यूटेशन का अमाउंट कम है तो उसका पीरियड भी कम होना चाहिए। यदि रिकवरी का पीरियड सेम होता है तो कम्यूटेशन का अमाउंट बढ़ना चाहिए। इन दोनों में से एक जगह तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ SBI pensioners in the line with the present day demand has already pleaded for recovery period of 12 years in place of 15 years. Even if it is assumed that the period of recovery is reduced to 12 years, the SBI pensioner will still be in loss as will be clear from the following example. तो दोस्तों अभी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, लेकिन यदि कम्यूटेशन का अमाउंट डिफरेंट है और उसका रिपेमेंट का टाइम सेम है तो लॉस तो बनेगा ही SBI के केस में। चलिए आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। SBI पेंशनर at 6.61 will get rupees 7,93,200 as explained above. The recovery will be in 12 years. 10,000 multiplied by 12 multiplied by 12 equal to 14,40,000. In case of other bank, at 9.81 factor commutation value of is rupees 11,77,000 as explained above. The recovery will be 10 multiplied by 12 multiplied by 12 equal to 14,40,000. So same amount will be recovered in both the cases. The pensioner continue to suffer loss. It is important that before change of recovery period from 15 years to 12 years, the commutation factor must be revised in SBI because even reducing recovery period to 12 years will not provide relief to SBI pensioners. So ये काफ़ी क्लियर है कि यदि कम्यूटेशन अमाउंट का फैक्टर अलग होने की वजह से SBI में कम कम्यूटेशन अमाउंट मिलता है और बाकी PSU बैंक में ज़्यादा अमाउंट मिलता है, तो उसकी वजह से यदि सेम रिपेमेंट का पीरियड रहेगा और सेम रिकवरी होती है तो SBI का पेंशनर हमेशा घाटे में रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वी होप लाइक अदर redressal of SBI pensioners issue, this will also get resolved. In the meantime, we advise pensioners in SBI to keep patience. Change of recovery period is industry level issue and cannot be resolved in SBI independently. Our priority should be to bring the commutation factor at par with industry level कम्यूटेशन फैक्टर्स। दोस्तों ये तो सही है कि जो कम्यूटेशन का रिपेमेंट का पीरियड है वो तो इंडस्ट्री लेवल का है और वो गवर्नमेंट के लेवल का भी है, तो वो उसी ढंग से रिजॉल्व होगा जो कि फाइनली जो हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा। लेकिन जहाँ तक कम्यूटेशन फैक्टर की बात है वो SBI के कम्यूटेशन फैक्टर को PSU बैंक के फैक्टर के बराबर होना चाहिए और उसके लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी लड़ाई उसी के लिए होनी चाहिए। दोस्तों इस तरह आपने देखा है कि FSBI PA द्वारा जो कैलकुलेशन की गई है उसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि जो कम्यूटेशन पीरियड के लिए 10 साल के बाद रिस्टोर करने के लिए
कहा गया है कमोडिटी अमाउंट वो इंडस्ट्री लेवल पर एक जैसा ही रहेगा, लेकिन एसबीआई और पीएसयू बैंक का जो कम्पिटिशन फैक्टर अलग अलग होने के कारण एसबीआई का जो कमिटेड अमाउंट होता है वो पीएसयू बैंक के मुकाबले काफी कम होता है और उसके बावजूद भी रिकवरी बराबर होती है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एसबीआई मैनेजमेंट से कम्पिटिशन फैक्टर चेंज करने के लिए कहा है। बेशक रिकवरी का जो इंडस्ट्री लेवल पे डिसीजन होगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगी वही रहेगा, लेकिन जो स्टेट बैंक का जो कम्पिटिशन फैक्टर है उसको चेंज करके पीएसयू बैंक के बराबर करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है, और जो कि काफ़ी रिजनेबल भी है। और मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है और उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करना ज़रूरी है। मेरे काफ़ी व्यूअर्स भी इस संबंध में कमेंट करते रहते हैं। इस कैलकुलेशन के बाद काफ़ी क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर एसबीआई की मैनेजमेंट इस सुझाव को मान लेती है तो मेरा ये मानना है कि ये एक एसबीआई के पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या बैंक पेंशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।